Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. Class 12th में लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.4 हमारी चल रही थी। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.4 में क्वेश्चन नंबर 14 से आगे हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट करें। cos of dy by dx is equals to a. Solve the differential equation. Find the particular solution. We have to find the particular solution when y is 1 and x is 0. Differential equation is exercise 9.4. Question number 13. Question is differential equation is cos of dy by dx. It is equals to a. Find the particular solution for this differential equation where a is any real number and y is equals to 1 and x is equals to 0. We have to find the particular solution in these situations. Particular solution find करने से पहले हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ता है और फिर उसमें ये सिचुएशन अप्लाई करते हैं तब हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है। ओके, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? डिफरेंशियल प्रोसेस का रिवर्स मींस डिफरेंशिएशन का रिवर्स इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन करने के लिए हम x वेरिएबल को एक साइड और y वेरिएबल को दूसरी साइड रखते हैं। dy by dx को सेपरेट करने के लिए यहां से cos एलिमिनेट करना पड़ेगा। So taking the cos on the right side, we find the function becomes dy upon dx is equals to cos inverse of a, and then transposing this dx on the right side, dy is equals to क्या बन जाएगा? dy it is equals to cos inverse of a into dx. Now integrating it both sides. So we find 1 dy is equals to on the right side cos inverse a, this is constant, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो x वेरिएबल होगा, इसलिए यहाँ पे cos inverse a क्या होगा? हमारा कांस्टेंट होगा। So taking this outside the integration, the remaining part is 1 dx. Integrate it. 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ a इज कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. नाउ applying these situations we will find the value of c and then we will get the particular solution. So put x is equals to 0 and y is equals to 1. So we find 1 is equals to cos inverse of a into x is 0 plus constant of integration. This implies constant of integration c is equals to 1. Put this value in equation number 1. So particular solution is, this is the particular solution. Particular solution is, what will be the particular solution? Y is equals to cos inverse of a to x plus value of constant means 1. This is the particular solution. ये बन जाएगा इसका particular solution. तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? उस डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे एंड फॉर दैट we will separate the variables x and dx one side, y and dy on the other side. Separate the variable, then integrate. After integrating, we get this is the general solution, and in this general solution, find the value of this constant of integration. इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, and for that apply this situation. जो भी situation क्वेश्चन में गिवन है वो अप्लाई करो, आपके पास constant of integration की वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू आप इस यहाँ पुट अप कर दोगे, you will get the particular solution. तो ये हमारा particular solution होगा। Similarly इसका क्वेश्चन नंबर 14 इसी पैटर्न पे है। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 00 मींस ओरिजिन। एक कर्व की इक्वेशन फाइंड करिए जो ओरिजिन में से पास होता है एंड whose differential equation is given. This is the differential equation. एक ऐसे कर्व की इक्वेशन निकालो क्या होगी जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है और वो कर्व ओरिजिन में से पास होता है। तो हम क्या करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सिंपलीफाई करें, कर्व की इक्वेशन निकालनी है मींस जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ओके,
जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए डिफरेंशियल है यहाँ पे, दिस इज द इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, वी विल चेंज इन द जनरल सॉल्यूशन मींस इंटीग्रेट करेंगे इसको. So this is the dy upon dx equals to e to the power x into sin x. Taking this dx on the right side, it will becomes dy equals to this dx. ये तो देगा इंटीग्रेट इट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. इंटीग्रल dy equals to इंटीग्रल e power x into sin x dx. Or it can be written as y equals to integral e power x into sin x dx. Let this is equation number 2. अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. There are two terms containing this term contain 2 times x, means you multiply the form first function multiply second function. When we have two functions in the multiplication, we will use the terminology to integrate, and that is isolate. बाय पार्ट इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इस फंक्शन के दो पार्ट है, मल्टीप्लाई में है, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे हम बाय पार्ट. फॉर दैट आइलेट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे. आइलेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम सेकंड मानते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानते हैं. तो टेकिंग दिस फंक्शन एज फर्स्ट एंड दिस फंक्शन एज सेकंड, इंटीग्रेट बाय पार्ट. इंटीग्रेट बाय पार्ट, हम इसको बाय पार्ट कर लेते हैं इंटीग्रेट. सो y इज इक्वल्स टू बाय पार्ट में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन रिमेन द सेम, फर्स्ट फंक्शन रिमेन द सेम एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. सेकंड फंक्शन ये है, इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, e पावर x माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e पावर x का इंटीग्रेशन सेम एंड dx. एक बार फिर से बताता हूं, बाय पार्ट इंटीग्रेट कैसे होगा, एक फंक्शन फर्स्ट और एक सेकंड मान लेंगे and that will be taken according to this term highlight, inverse trigonometric, logarithmic, algebraic, trigonometric and exponential. जो अल्फाबेट पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को सेकंड फंक्शन मान लेंगे. यहाँ एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक था, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट लेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड. सो टेकिंग दिस फंक्शन एज फर्स्ट एंड दिस फंक्शन एज सेकंड, इंटीग्रेट बाय पार्ट. बाय पार्ट में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन रिमेन द सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. वही प्रोसेस हम यूज करते हैं यहाँ पे. तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन रिमेन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e पावर x का इंटीग्रेशन यही रहता है, माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन का डेरिवेटिव cos x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e पावर x का इंटीग्रेशन यही रहता है. नाउ अगेन देयर आर टू फंक्शंस इन द प्रोडक्ट, अगेन अप्लाई द बाय पार्ट. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज फर्स्ट, exponential function is second, integrating this part again by part. So we got y equals to, this is sin x into e power x minus, अब इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन रिमेन द सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e पावर x का सेम रहता है माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है माइनस sin x, integration of second e power x dx. okay, this minus will neutralize this minus, तो मैं इसको बना देता हूं प्लस, ये बन जाएगा प्लस. okay, so we find this value of y is sin x into e to the power x, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, it becomes minus cos x into e to the power x and minus integration sign of sin x into e to the power x dx. Using the equation number 2, e to the power x into sin x dx integration, it can be written as y. तो इस चीज को हम क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं. तो यूज इक्वेशन नंबर 2, यहां हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज करते हैं. क्या होगा, सो वी गॉट y is equals to sin x e to the power x minus cos x e to the power x. e to the power x कॉमन आउट करते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे, sin x minus cos x. it is sin x minus
cos x and minus using equation 2 here, so minus इक्वेशन 2 कहती है दिस इज इक्वल्स टू y, तो ये बन जाएगा y एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में आता ही है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप यहां लिख ले, टेकिंग दिस माइनस y ऑन द लेफ्ट साइड बिकम्स प्लस y, और प्लस y होगा तो ये क्या बन जाएगा y plus y, it is 2y equals to e to the power x into sin x minus cos x plus constant of integration divided by 2, we got y is equals to e to the power x upon 2 minus into sin x minus cos x and plus constant of integration divided by 2. Let us suppose this is equation number 3. Now apply this equation, ये जनरल सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मींस इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करने के लिए, ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व को, हमें फैमिली ऑफ कर्व नहीं पर्टिकुलर कर्व की इक्वेशन निकालनी है, वो कब पासिंग थ्रू पॉइंट 0 0, क्वेश्चन में गिवन है पासिंग थ्रू पॉइंट 0 0, if it passes through point 0 0 0 0, then what will happen, put x 0 and y 0, whereby 0 is equals to e to the power 0 upon 2 sin 0 minus cos 0 plus c upon 2. e to the power 0 is 1 upon 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0 बन जाएगा, sin 0 is 0 minus cos 0 is 1 plus c upon 2, minus 1 है, minus 1 को इधर लाएंगे प्लस 1 हो जाएगा, we find 1 is equals to c upon 2 means c is equals to 2 and put this value of c in equation number 3, we find the general solution, particular solution or equation of curve is required curve की इक्वेशन क्या बनेगी, this is the equation of curve, y is equals to e to the power x upon 2 sin x minus cos x plus c upon 2, c की वैल्यू क्या है 2, तो 2 upon 2 means 1 plus 1, this is the इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्व, ये बन जाएगी उस कर्व की इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग द डिफरेंशियल इक्वेशन एज दिस, ऐसे कर्व की इक्वेशन जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो और वो ओरिजिन में से पास होती है, ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ कर्व. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 17 हम करते हैं इसमें. 17th क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0 -2. ऐसे कर्व की इक्वेशन निकालनी है जो 0 -2 पॉइंट से पास होता है. आगे कहता है गिवन दैट एट एनी पॉइंट xy ऑन द कर्व का कोई एक पॉइंट xy है, उस पॉइंट से द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. प्रोडक्ट ऑफ tangent to the curve and y coordinate is equals to x coordinate at point xy, इस पॉइंट के ऊपर what is given, slope of tangent, product of the slope of tangent multiply इसके साथ y coordinate के साथ means multiply y, it is equals to x coordinate, it is equals to x. This is given. Product of the y coordinate with the slope of tangent is equals to x coordinate. Slope of tangent means हम डेरिवेटिव वाले चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कर चुके हैं. स्लोप ऑफ टेंजेंट को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, dy upon dx, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन dy upon dx, it is equals to x. So सिंपल है, आप इक्वेशन फाइंड कर लीजिए. इस पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन कर्व की इक्वेशन निकालनी, जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है. जस्ट इंटीग्रेट इट x into dx, integrate both side, so y dy equals to x into dx, y square upon 2, x का इंटीग्रेशन x square upon 2 plus constant of
integration. Put the point is 0 minus 2 in this curve, in this equation. So we find minus 2 square is 4 upon 2, 0 square is 0 upon 2 plus constant of integration means c is equals to 2. Put in equation number 1. So equation of curve क्या बन जाएगी कर्व की इक्वेशन y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ कर्व। या चाहो तो आप 2 एलसीएम लोगे और x स्क्वायर को लेना हो तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। यू कैन आल्सो राइट दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट कर्व which passes through this point and its slope of the product of the slope of tangent and y coordinate is equals to x coordinate। ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। क्वेश्चन नंबर 18 सिमिलरली इसी पैटर्न पे होगा, जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं बता देता हूं बस। क्या है डिफरेंस, क्या है इसमें? एट एनी पॉइंट xy ऑफ द कर्व है, उसका कोई एक पॉइंट है xy, the slope of tangent xy पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है मींस dy अपॉन dx जो है क्या कहता है इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट joining the point of contact to the point -4 -3। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया xy है। लेट अस सपोज मैं एक रफ कर्व ड्रॉ कर लेता हूं। लेट अस सपोज दिस इज द कर्व, ओके। ये है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट व्हिच इज x y। अब क्या कहता है एट एनी पॉइंट xy होता करता स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये जो स्लोप है इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस dy अपॉन dx। it is equals to dy upon dx किसके इक्वल है? डबल। किसका डबल? twice the slope of the line segment joining this point of contact। इस पॉइंट को पॉइंट -4 -3 से, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट -4 -3। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान रखना फेयर नहीं है, रफली सिर्फ समझाने के लिए। इस पॉइंट को जब इसे ज्वाइन करेंगे तो इसका जो स्लोप होगा उससे डबल होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट मींस dy upon dx इज डबल, ट्वाइस डबल है किससे? स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point of contact with -4 -3। इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है इसके स्लोप से डबल है स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका स्लोप क्या बनेगा ये देखो, दो पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते थे हम 11th क्लास में था y2 - y1 अपॉन x2 - x1, याद है? ये हमारे पास था स्लोप निकालने के लिए, 11th क्लास में हम कर चुके। ये इक्वेशन गिवन है, बस लाइन कर दो। स्लोप ऑफ लाइन, लेट xy इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देन स्लोप ऑफ लाइन joining xy and -4 -3, -4 -3 को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या बनेगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस dy upon dx is given as twice of the slope of this line, ये दे रखा है। अब इससे हमने इक्वेशन ऑफ कर्व बनानी है। यहां से इक्वेशन ऑफ कर्व बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करने के लिए इसके वेरिएबल हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट द वेरिएबल्स, x और dx को एक तरफ, y और dy को दूसरी तरफ। तो इसको मैं आने आता हूं dy अपॉन y प्लस 3 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई dx अपॉन x प्लस 4। नाउ इंटीग्रेट, इधर इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे लॉगरिथम में बनेगा क्योंकि डिनोमिनेटर लीनियर है, यहाँ भी लॉग में बनेगा। और सिंपलीफाई यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। उसके बाद आगे और भी लिखा है, ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू पॉइंट -2 and 1।
यहां से जनरल इक्वेशन बनेगी log of y plus 3 is equals to 2 into log of x plus 4. सारी चीज log में है, आप कांस्टेंट भी log में ले सकते हैं. We can write log of y plus 3 equals to log में ये टर्म मल्टीप्लाई है, पावर चली जाती है हमेशा, रूल आपको पता ही है, x plus 4 स्क्वायर और प्लस वाले टर्म आ जाती है मल्टीप्लाई. लॉगरिथम को न्यूट्रलाइज कर देगा, x plus 4 होल स्क्वायर इनटू कांस्टेंट. अब यहां से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एलिमिनेट करना है हमें, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है. उसके लिए गिवन कंडीशन अप्लाई करेंगे. कंडीशन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट -2 1. ये मान लिया आपके पास फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन है. नाउ कर्व 1 पासिंग थ्रू, नाउ इक्वेशन 1 जो है वो पास होती है कहां से? पासिस थ्रू क्या पॉइंट दिया है? -2 1. सो पुट अप x -2 y1, x -2 y1 पुट करें तो ठीक है 1 plus 3 equals to -2 and plus 4, -2 and plus 4 square into c. 4 is equals to ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 into c. On calculating c is 1. Put it in 1. Put in 1. So what is the equation of curve? Equation of curve is y plus 3 is equals to x plus 4 whole square. This is the equation of a curve. ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ कर्व. कैन यू आइडेंटिफाई द कर्व? किस टाइप का कर्व होगा ये? इलिप्स है, सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, कैसा कर्व होगा? अगर आप ध्यान दो तो ये चीज हमने जब इंटीग्रेशन वाला पोर्शन किया था उसमें कई बार रिपीट की थी ये चीज. एक चीज स्फीयर में, एक नॉन स्फीयर में है, और इस फॉर्म में आपके पास जनरली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वहां पे पैराबोला की इक्वेशन होती है. दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ठीक है, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड. एक स्फेरिकल बलून है, उसके अंदर हवा पंप की जाती है. Its volume changes at a constant rate. इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है कांस्टेंट रेट से. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट गिवन. If initially its radius is 3 unit, स्टार्टिंग में इसकी रेडियस कितनी है? 3 यूनिट्स है, and after 3 सेकंड रेडियस इज 6 यूनिट. शुरू में रेडियस 3 है, उसके अंदर हवा पंप की जाती है. पंप करने के बाद वो कांस्टेंट रेट से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. 3 सेकंड के बाद इसकी रेडियस बन जाती है 6. Find the radius of the balloon after t seconds. What is given? Volume of balloon is changing. Change means volume of balloon changing. Change means a derivative with a constant rate. Rate of constant. Volume of balloon is changing at a constant rate. Let us suppose r is the radius, t is the time. Let r and t be radius and time. ये मान लिया हमने. dv upon dt, rate of change of volume is given as a constant. Put up the value of volume d upon dt. स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 pi r cube. I think यही वॉल्यूम है स्फीयर के लिए. स्फेरिकल शेप में है ना बलून. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. d upon dt मींस डेरिवेटिव है. क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव? 4/3 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट r क्यूब. r वेरिएबल है. स्टार्टिंग में इसकी रेडियस 3 थी, उस टाइम बाद रेडियस 6 होगी, यानी कि रेडियस चेंज हुई है ना. रेडियस चेंज हो रही है मींस रेडियस इज वेरिएबल. रेडियस वेरिएबल है तो वेरिएबल का डेरिवेटिव करते हैं. r क्यूब का डेरिवेटिव ये बच गया हमारे पास d/dt ऑफ r क्यूब. ऐसे बच गया. अब इसका डेरिवेटिव करते हैं. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आगे आएगी यानी कि 3r स्क्वायर बनेगा ना. सो इट्स डेरिवेटिव इज 3r स्क्वायर इनटू dr अपॉन dt. ये बन जाएगा डेरिवेटिव. 3 कैंसिल्ड आउट विद 3. सो वी फाइंड इट इज 4 pi r स्क्वायर इनटू dr. हम dt को ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड.
अब इसको जनरल इक्वेशन बनानी है हमने, इसके लिए जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट कर दें इसको, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट बोथ साइड। सो लेफ्ट साइड 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dr इक्वल्स टू कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। 4 पाई r स्क्वायर का डेरिवेटिव r क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल्स टू c 1 का इंटीग्रेशन t प्लस, यहां कांस्टेंट हम कुछ और ले लेते हैं क्योंकि c तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माना जाता है ना, ठीक है। मैं इसको कांस्टेंट को k मान के चलता हूं, ये है k, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। अब जो सिचुएशन है वो पुट करो, इसमें k और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिचुएशन क्या क्या गिवन है, व्हेन इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, इनिशियली यानी कि जब उसमें हवा पंप नहीं की गई थी, स्टार्टिंग में 3 यूनिट थी, उसके बाद हवा पंप करनी शुरू होती है। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियली टाइम कितना है 0, जब स्टार्ट हुआ उससे पहले टाइम 0 होता है, रेडियस कितनी है 3, ये है। सो पुट दीस वैल्यूज 4 पाई अपॉन 3, रेडियस है 3, 3 क्यूब इज 27 इक्वल्स टू k इनटू t, t है हमारे पास 0 प्लस कांस्टेंट। सो वी फाइंड दिस कांस्टेंट c इज, ये कैंसिल हो जाएगा 9 से 36 पाई। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 नहीं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1, c की वैल्यू आ गई। इसी तरह से k की वैल्यू और फाइंड करनी है, बस c और k दोनों फाइंड करनी है। सो वी फाइंड 4 by 3 pi r cube is equals to kt and plus constant of integration which is 36 pi। अब यहां से k और फाइंड करना है। k फाइंड करने के लिए सेकंड कंडीशन अप्लाई करो, आफ्टर टाइम t, आफ्टर 3 सेकंड, आफ्टर t is equals to 3, r is equals to कितना है 6, व्हेन टाइम कितना आपके पास 3, रेडियस कितनी है 6, पुट कर दो। सो 4 upon 3 pi 6 क्यूब इक्वल टू t की वैल्यू 3, तो 3k प्लस 36 pi, 6 का क्यूब 216, ये होगा 216, 4 pi by 3 into 216, 36 pi इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 3k, ये किसके कैंसिल होगा 72 into में 4 कितना हो जाएगा 144 minus 36 pi 8 is equals to 3k, k की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 144 में से 36 माइनस होगा 108 pi और 3 डिवाइड में 3 से कैंसिल कर लो, वैल्यू ऑफ k इज 36 pi, k की वैल्यू भी 36 pi आती है। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, put in equation number 2, so we find 4 upon 3 pi r cube is equals to k की वैल्यू 36 pi into t plus 36 pi, 4 upon 3 pi को उधर ले जाओ, आपका यहां से जो रिक्वायर्ड सिचुएशन है वो आ जाएगी सॉल्व होके। यहां से क्या बन जाएगा r क्यूब इज इक्वल टू, ये 36 पाई कॉमन आउट, अंदर क्या बच गया t प्लस 1, और यहां से 4 अपॉन 3 पाई उधर जाके 3 अपॉन 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा 9 पे, r क्यूब इज इक्वल टू 27 into t प्लस 1 और r इज इक्वल टू 27 का क्यूब रूट 3 t plus 1 power 1 by 3, this is the radius when time is t, जब इसका टाइम t है तो रेडियस 3 into t plus 1 power 1 by 3, ये बन जाएगी इसकी रेडियस। so this is the question number 19 एक्सरसाइज 9.4 में 19th क्वेश्चन है। इसके अब 3-4 क्वेश्चंस और बचे हैं,
वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अभी टाइम हमारे पास लिमिटेड है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे बेटा। बाय बाय। बाय सर।